Hello friends, welcome back to my channel Study Made Easy. Now without further wasting time, let's get started to the first chapter where we had stopped in a previous video. We are going to start from the moment of couple. That's today. Today we'll try to finish complete chapter and with all the information of course. So let's get started. So moment of couple. What is moment of couple? So the moment of couple basically is the perpendicular distance. I'll explain you in an easy way. Like moment of couple has one formula. So moment of couple is equals to F into 1 meter. Let me explain easily. So if this is a rod, okay, I give it here zone A and B. So moment of couple is force that I apply. Force from O to A. So this will be my formula. F moment of couple is equals to F into OA, distance S. Yes, you remember that formula? Yeah, it is the same. Then second, now O to B. So do the same. Just write moment of couple is equals to F into OB. Right? Now moving on to how to total it. So totaling is very easy. What you got for first, F1, F2 plus it. You get the answer. Now this will be coming in numerical. So learn this very well. So the formula is moment of couple is equals to F into perpendicular distance. That will be, as I give OA, OB, whatever they ask, we'll go for that and we'll solve one or two. Okay. So coming on to the next, this was only about moment of couple. So basically moment of couple is equal to the force into the perpendicular of two forces. Perfect. Go ahead. Equilibrium of bodies. What is equilibrium? So basically equilibrium is a state. It is a state where number of forces acting on the body and the body remains in which the body remains unchanged, either in the state of rest or in the state of motion. Or motion can be two ways, as we did in previous video, rotational and translational or linear, right? So it can it remains same, body remains unchanged under the influence of number of forces. That is a state of equilibrium. Now how many kinds of equilibrium are there? So two types of equilibrium are there. Which? Static equilibrium and dynamic equilibrium. So in static equilibrium, when a body remains in state of rest under the influence of several forces is called static equilibrium. Now some examples are there like a book lying on table. It is in state of rest, static equilibrium. Then you can tell a glass on a kitchen, wherever, right? Glass in shelf. It is in state of rest. It does not move. Now coming on to dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means it is when the body remains in state of motion, either rotational or linear or translational motion, under the influence of several forces. It is called dynamic equilibrium. For example, an aeroplane moving over in the sky. Then it's enough. Then coming on to next way. This can be a stone tied at the end of a string. See, these examples given in concise textbook are very important. They are asked in several ways.
Now they have given one more point over here. Then that's very much important. What are the factors or the conditions in which equilibrium takes place? This is utmost important. They ask it for 2 marks in definition, or else they can just write it that give the conditions for equilibrium. So you are supposed to write, first one is the resultant of all the forces affecting or acting on the object or body should be 0. Second, the algebraic sum of all moments of all forces acting on the point of all point of rotation should be 0. So there is one more. Let's do one more time. Resultant of all forces acting on the body should be 0. Resultant of all the forces acting on the body should be 0. Second point, the algebraic sum of moments of the forces acting on the body, the algebraic sum of all moments of all the forces, the algebraic sum of moments of all the forces acting on the body should be 0. About the point of rotation should be 0. Yeah, this is very important. I'm sorry, I missed it. On the body, about the point of rotation should be 0. Coming on to what are principle of moments. So this is very easy concept. Principle of moments is really very easy. Really, you just have to know the blue box, the algebraic sum of all the moments of forces acting on the body about the axis of rotation 0. Body is in equilibrium. This is asked in Gurison. Or they can also ask like how you can state that the body is in equilibrium. So you have to write each and every perfect word. Right? For perfect marks, you have to write perfect words. If the algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is in equilibrium. Simple? Yes. Now blue box of course all are important. I am just explaining it in a simple way. This will come in numericals. So blue box states, according to the principle of moments in equilibrium, sum of the moments is equal to the sum of clockwise and anti-clockwise moments. Means we had done, you remember we had done anti-clockwise and clockwise. Anti-clockwise is supposed to be positive and clockwise is supposed to be negative. So same, by here you have to write by the principle of moments, anti-clockwise moments is equal to the clockwise moments. मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है ना, जो उल्टा जाता है ना, उल्टा मूवमेंट, वो और सीधा जाता है, वो मूवमेंट दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं है. और वो कौन सा प्रिंसिपल पे होता है? तो फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. फिजिकल बैलेंस एंड बीम बैलेंस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. ये पूछते हैं कि ऑन व्हाट इज मेजर्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. आपको लिखने का फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. उसके बाद एग्जाम्पल आते हैं. भी एग्जाम्पल तो आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको बस न्यूमेरिकल बताता हूँ. ओरली बताऊंगा अभी, इसलिए ज्यादा टाइम ना जाए, है ना. यहाँ पे जो एक्सरसाइज में दिया है ना न्यूमेरिकल, उसमें से ही मैं आपको बताता हूँ. अभी लेट्स टेक, हाँ ये हमने किया था ना, वैसे ही है. लेट्स टेक फिफ्थ वन. Two forces, the question is, two forces each of magnitude 10 n. You remember what is n? SI unit is n. Act vertically. N is also Newton, huh? N is Newton in fact. Act vertically upwards and downwards respectively. मतलब ये डायग्राम कैसा है? 10 ऊपर है और नीचे भी है ना.
यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है. अब what they say more, A and B. So there is a line like this, line this way and down also. Here भी, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है और बीच में है ना ये पॉइंट है, ये O है और यहाँ पे 4 मीटर है डिस्टेंस है. कौन सा? यहाँ का भी और पीछे यहाँ का भी 4 है और यहाँ का भी 4 ही है डिस्टेंस. उसके बाद दे आर आस्किंग अस डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. मतलब अभी देखो इसमें क्या क्या दिया है. इसमें फोर्स दिया हुआ है. फोर्स मतलब लिखो F इज इक्वल्स टू 10N. N बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का, N. और दूसरा क्या दिया है? लेंथ. वो क्या है? S. S is the distance is equals to 4 meter. Meter is also very important. So now you just substitute in the formula, that is, yes, okay, so the formula I think you all may be knowing now by now. So you have to write is equals to F into S. So you just have to multiply it, right? So what will you get? Nm. Got it? So you have to just write moment of force is equals to F into S. Now here we have two terms, OAB, 10 10. So first take point O से A तक. So what will you get is moment of force is equals to F. F is 10 and the distance is 4. So comes 40. यहाँ पे 40 आएगा, ऐसे घूमेगा, वो साइड नीचे भी 40 ही आएगा. तो ऐसे घूमेगा ये, जहाँ पे ज़्यादा शोर होगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, हाँ, या ऐसे 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 घूमेगा ना ऊपर के ऊपर. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ पे नीचे फोर्स आ रहा है तो ऐसे घूमेगा. तो क्या लिखने का? 40 Nm एंटी क्लॉकवाइज. आई एम सॉरी, क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे, सॉरी, क्लॉकवाइज. 40 Nm क्लॉकवाइज. अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट लेते हैं जो पूछते हैं. ये आपका बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे दिए थे मैंने. लेट्स टेक 10th वन. ओके, सो द 10th स्टेट्स द यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट अ मिडल पॉइंट O. A weight of 40 GF is, again GF is a CGS unit, kgf, you remember? Yeah. 40 GF is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर. अब भी यहाँ पे देखो, ये जो 40 सेंटीमीटर है ना, उसको हमें मीटर, क्योंकि क्या है वो ऐसा यूनिट है, उसे हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, है कि नहीं? मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे. आप तो वही सोच लोगे क्यों नहीं कर रहे. हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वेट ऑफ 40 GF दिया है, वो भी CGS यूनिट ही है, तो फिर क्यों कन्वर्ट करें? दोनों CGS में ही है ना, तो सेम ही रखने का, कुछ नहीं करने का. सो wherever we placed at a distance of 40 centimeter to the left of point O, how can you balance 80 GF with a weight of, how can you balance the bar with the weight of 80 GF? Quite simple. अभी ये देखो, हाँ, ये वेट, ये है यूनिफॉर्म बार है, यहाँ पे फलक्रम होगा, यहाँ पे पूरा ये ऐसे जाता है, ऐसे 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 दोनों हो सकता है ना, और हम यहाँ पे 40 है. कैसे जा रहा है ये देखो, 50 40 30 20 10 0, फलक्रम पे आ गया. अभी वापस पीछे की साइड ऐसे जाएगा, ये 0 10 20 30 40 50 ऐसा है. 1 2 3 4 नहीं जा रहे, ये ध्यान रखना. हम लोग और एक सम लेके जिसमें 10 20 30 वैसे जाएगा, इसमें 50 40 30 वैसे जा रहा है. अभी क्या दिए इसमें कि इसमें ना 40 GF का वेट 40 पे लगाया हुआ है, मतलब ऐसे टर्न हो रहा है. अब इसे हमको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो यहाँ पे 80 GF का कहाँ पे लगाओगे जिससे कि आपको ये मिल सके? तो आपको ये लिखने का, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कॉमा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. इसके बाद आप क्या करोगे?
बहुत इजी फॉर्मूला है, W इंटू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एस। क्या होता है ये समझा तो। W मतलब क्या, वेट, वेट है ना, उसे लिखने का आपको 40 GF इंटू क्या करने का 40 माइनस 0, तो आएगा इक्वल्स टू लिखने का 40 इंटू 40 माइनस 0 इक्वल्स टू, इसमें क्या लिखोगे आप, वेट दिया हुआ 80, तो 80 लिखने का, कहाँ पे लगाना है वो नहीं मालूम, तो मल्टीप्लाई बाई एस, सेम लिखने का। अभी क्या करोगे, 40 इंटू 40 आएगा आपको, 40 इंटू 40 इक्वल्स टू 80 बचा, 80 को नीचे ला लो, इक्वल टू एस वहीं पे रहेगा, तो एक 40 जाएगा, 2 आएगा नीचे, 2 1 जा और 20 आया, परफेक्ट 20 आया, सिंपल हो गया ना। तो अभी आप कैसे आंसर देखो कैसे लिखोगे, 20 सेंटीमीटर हमको आंसर आ गया। सो अभी लिखना बाई प्लेसिंग वी, नहीं ऐसे लिखो, ये ज़्यादा अच्छा देगा। वी कैन ब्रिंग द बार इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बाई प्लेसिंग 80 GF ऑफ वेट ऑन 20 सेंटीमीटर ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मत लिखो, राइट साइड ही लिखो, ऑन राइट साइड ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ पॉइंट ओ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब रिवाइंड करके वापस एक बार देखो। और हम लोग इसके लिए और एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको फुल्ली क्लियर हो जाए। अभी ये वाला थोड़ा इजी लेते हैं, 8th, ये पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 8th, इसमें क्या दिया है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब आप समझिए, यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब ऐसा, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है। अभी इसमें कैसे होएगा, मोस्टली 10 20 30 40 50 पे होगा आपका फलक्रम, 60 70 80 90 100 वैसा जाएगा वो। अगर आपको 50 40 30 20 10 दिया हो और वापस वैसे ही लिखना हो जैसे हमें लास्ट सम में किया, तो आपको डायग्राम देंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान में रखना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, comma, anti-clockwise moments is equals to clockwise moments, W into S equals to W into S, वो बहुत important है। अभी yes, let's take this example. 8th, a uniform meter rule is pivoted at its midpoint. Midpoint क्या होता है, 50 हमेशा midpoint ही होगा, so 50 is the midpoint. The uniform is pivoted at midpoint. A weight of 50 GF is suspended at one end of it. मतलब क्या, ऐसा है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे लगा दिया 0 के ऊपर, वेट क्या हुआ, W इंटू एस में क्या आएगा, पहला आएगा वेट 50 आ गया, इंटू एस में क्या लिखोगे 50, और ये क्या है 10 है, 0 नहीं होता इसमें, 0 नहीं होगा, हाँ 0 होएगा, सॉरी 0 10 20 जैसा जाएगा। अभी 0 पे हमने यहाँ पे लगा दिया, एक वेट लगा दिया 0 पे 50 का, W आ गया 50, और 50 और 0 क्या होता है 50 होता है, 50 इंटू 50 आ गया। उसके बाद क्या दिया है, एट एंड ऑफ इट वेयर शुड 100 GF भी सस्पेंडेड, दूसरा वेट क्या है 100 है, तो 50 इंटू 50 होगा, नीचे का 100 आ गया, 0 0 कैंसिल होएगा ना, ऊपर और नीचे 0 0 कैंसिल, सो 25 सेंटीमीटर। तो अभी कैसे लिखोगे, द बार कैन बी ब्रॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय suspending the weight of 100 GF at 25 centimeter from the other hand. क्योंकि इसमें उन लोग ने राइट लेफ्ट कुछ बताया नहीं, उसमें डायग्राम दिया है पिछले वाले में। अगर डायग्राम दे तो आप लिखो राइट लेफ्ट जो भी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके दूसरा ही साइड होगा, और जहाँ पे नहीं दिया उसके अदर एंड लिखने का, राइट लेफ्ट नहीं लिखने का, अदर एंड ही लिखने का। इज इट क्लियर? yes. Now let's start with center of gravity. What is center of gravity? Basically, center of gravity of a body is a point about which algebraic sum of moments of all weights of all particles consisting the body is zero. मतलब ओके,
like take an easy example of a circular ring. उसका जो जियोमेट्रिक सेंटर होता है ना, जैसे कि ये एक रिंग है ना, ये एक रिंग है, तो यहाँ पे उसका जियोमेट्रिक सेंटर होगा ना, तो ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब यहाँ पे वो स्टेबल हो सकता है, भले ही वो एयर में है, आप वही पॉइंट पे उसे स्टेबल कर सकते हो। जैसे कि सीडी है ना, सर्कुलर डिस्क, वैसे ही सीडी को आप वो कैसे रहता है, बीच में गोल छोटा होल रहता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका, आप उस पे उसको स्टेबल कर सकते हो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिजिक्स की भाषा में कैसे लिखोगे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट about which the algebraic sum of moments of all the weights of particles is zero. Simple. And it can be also considered like the entire weight of body act at that point, howsoever the body is placed. सो रहा है, खड़ा है, जो भी है, चल रहा है या गिर रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप बदलते ही रहता है। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्लांट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा, अगर ये स्ट्रेट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे हो जाएगा, अगर सो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, नोट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, note this is really very important, they ask this, so it comes for I think 2 or 3 marks again. So इसमें क्या कह रहे हैं, the position of center of the gravity of body of given mass depends on the does not depend on the size and depends on the size and shape। मतलब क्या, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो स्लांट है, स्ट्रेट है, स्लीपिंग है, जो भी है, वो क्या मटेरियल मतलब मास और शेप पे है। मतलब सर्कुलर डिस्क का क्या पे आएगा, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो नहीं है, अभी अज्यूम करो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का कहाँ पे होगा, दो डायगोनल जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो रेक्टेंगल का होगा। परफेक्ट, यस। दूसरा क्या कहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द ऑब्जेक्ट और मटीरियल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर रिंग एयर में है ना, मटेरियल में तो नहीं है। अभी एक वायर ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, रॉड का कहाँ पे है, मटेरियल के अंदर रहता है ना, ये रॉड है और यहाँ पे रहता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिंग का एयर में रहता है, सेम। थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ वेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल वेट W at its center of gravity. Not so important, but learn it because it is asked, these 3 points are asked for 3 marks, and for that you have to describe all. Coming on to, now this is very important. As I said, take a pen and paper, make a table with 2 divisions this way, just made one drawing, write object on first one and write position of center of gravity. फर्स्ट वन इज रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड वही होता है उसका। दूसरा सर्कुलर डिस्क, जियोमेट्रिक सेंटर। तीसरा क्या होता है, सॉलिड और होलोस्फीयर। ध्यान देखो, सॉलिड और होलोस्फीयर, ये आपको मैथ्स में भी है ना, सॉलिड स्फीयर और होलोस्फीयर। वैसे जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर, इजी है एकदम। सर्कुलर डिस्क में सॉलिड और होलोस्फीयर में जियोमेट्रिक सेंटर, याद रखना है इसे। खाली स्फीयर होता है तब स्फीयर ऐड करने का पीछे। रॉड में मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, सॉलिड और होलो सिलेंडर, ये भी मैथ्स में आपको उसका मिड पॉइंट होता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सॉलिड कौन का होता है एट अ हाइट ऑफ h अपॉन h, मतलब हाइट अपॉन 4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस, है ना, एट अ हाइट ऑफ h अपॉन 4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। उसके बाद सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। ट्रायंगुलर लेमिना, ये बहुत बार पूछते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना, मार्केट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर लेमिना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। दूसरा क्या होता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, जो भी है, जो स्क्वायर होता है, स्लांट होता है, ऐसे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, जो भी है ना,
जिसमें भी डायगोनल्स होता है ना, वहां पे लिखने का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल डायगोनल्स, सिंपल। तो इसी के साथ हमने ए और बी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी सी भी मैं आपको फटाफट कह देता हूँ, बहुत इजी है, सी सबसे इजी है। अभी सी में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफाइन, सिंपल पूछेंगे, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या लिखोगे? सिंपल है लिखने का, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? एन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड पे जा रहा है मतलब यूनिफॉर्म हो गया, सर्कुलर घूम रहा है मतलब सर्कुलर हो गया, और मोशन में है मतलब मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So when a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion। हो गया। अभी इसमें ना स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड, don't write magnitude, write speed if it is asked and filling the blanks, that what remains constant in uniform circular motion, write speed। then अभी आपको समझ ही आ गया, मतलब ये सब कुछ एक सर्कल है, यहाँ पे लगाया धक्का तो ऐसे घूमेगा, यहाँ पे तो ऐसे 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 वैसा। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन और एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्क्यूलर पाथ। ये बस लर्न कर दो, ये पूछेगा नहीं इतना, लर्न कर दो। Yes, now comes the most important part of the whole chapter, heart of the chapter। अभी सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? मैरीगो राउंड देखते हो ना, मैरीगो राउंड, गोल 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 जायंट व्हील, उसमें क्या होता है, जो फोर्स रहता है ना अंदर की तरफ खींचता है, टूवर्ड्स द सेंटर। बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स is a force acting on the body moving in a circular path towards its center। It is a force acting on the body moving in circular path towards its center। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो रियल फोर्स नहीं होता, सबसे पहली चीज। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स or an assumed force seems to be acting on the body of the direction away from the center। उसमें क्या होता है? towards the center, इसमें away from the center। और सर्कुलर पाथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सर्कुलर पाथ। अभी आपको ये ना डिफरेंस में पूछ सकते हैं, डिफरेंस और एक आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड लीनियर मोशन। ये तो आपको आता ही होगा। सर्कुलर मतलब क्या? इन अ सर्कुलर पाथ में घूमता है। लीनियर मतलब क्या? इन अ स्ट्रेट लाइन। इजी, डन। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या लिखने का? सेंट्रीपेटल में लिखने का इट इज अ रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इट इज एन इमेजिनरी फोर्स और एन अज्यूम्ड फोर्स। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू राइट दैट इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी which moving in a circular path which shows a direction towards the center। उसमें क्या लिखने का? बस एक ही डिफरेंस है, इट सीम्स एज इफ द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसमें आप लिख सकते हो इट इज अ डायरेक्शन, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। बस भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़े ही टाइम में एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैं। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या एग्जांपल होगा? अ सैटेलाइट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ और एनी प्लेनेट, और द प्लेनेट रोटेटिंग अराउंड द सन। सिंपल है। और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड एन एटम। स्टोन, अभी इसमें क्या होगा? स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब गोल गोल घुमाते हैं पत्थर को बांध के स्ट्रिंग से।
उसमें क्या फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। ये पूछते हैं कि अगर आप स्टोन को बांधते हो और गोल गोल घुमाते हो तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, तो आपको लिखने का टेंशन फोर्स एक्ट्स। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल आप याद कर लो अभी। कौन से बोले मैंने, planet moves around the sun, satellites move around the planet, और when stone tied at the end of string at gold, तो उसमें टेंशन फोर्स होता है। और in an atom electrons revolve around the atom, अरे nucleus, I'm sorry, so there also I use word atom, it's nucleus। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई एग्जाम्पल नहीं होता, आप लिख दो, क्योंकि वो अज्यूम्ड फोर्स है ना, इमेजिनरी फोर्स है। आप लिख सकते हो कि इन अ मैरी गो राउंड अ पर्सन सी और अ पर्सन ए सिट एट द ग्राउंड लेवल व्हेन सी इज एट द मैरी गो राउंड, it seems, the act seems as if it is in direction away from the center। बस, क्योंकि ऐसा कोई एग्जांपल नहीं, क्योंकि किसने उसे देखा ही नहीं है ना, इमेजिनरी फोर्स है वो, हम लोगों को लगता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, press the bell icon and give a like and hit a like to our video. Thank you. Or we'll meet again with a new chapter of a new subject. Okay, till then, signing off for now. Thank you.